Today we are going to talk about loads. इससे पहले हम discuss करते आ रहे हैं कि structure needs to be designed for the loads has to carry. So today we will discuss what loads a structure needs to carry and how to calculate those types of loads. Very broad classification: static loads and dynamic loads. Static loads do not cause any appreciable acceleration or vibration of the structure or structural elements, whereas dynamic loads, they do. Static loads do not vary significantly with time, whereas dynamic loads do, and the more sudden the starting or stopping of the structure, the greater is the dynamic force involved. Gravity loads are the examples of static loads. So dead gravity load and live are examples of static loads. More on this later. Examples of dynamic loads are earthquakes, wind loads, blasts, vibrations from heavy machinery, etc. So if you look at this water tank, the load, the weights of the weight of the water tank itself is a gravity load and is a dead load. We'll discuss why it's a dead load. And the weight of water stored in the water tank is a live load. We'll discuss why we call it a live load. But if, for example, in case of earthquake, the ground starts shaking, then naturally it will cause vibrations in the water tank itself. It will cause acceleration of water tank, acceleration. In fact, ground shaking or earthquake consists of ground acceleration. In fact, so when the base is excited by ground acceleration, it transmits the acceleration up to the structure, and the structure is set in motion. So depending upon the nature of the magnitude of acceleration exerted at the base by earthquake, if large accelerations are exerted due to heavy earthquake, due to intense earthquake, the larger accelerations will be produced in the structure as well. And if you're familiar with Newton's second law, it says the forces, inertial forces, are proportional to mass times acceleration. They are equal to mass times acceleration. So what does it mean? We're talking about dynamic loads. Dynamic loads in case of earthquake are given by force equal to m times a. These are the dynamic loads. This is the mass of the structure, and this is the acceleration produced in the structure. All right, so there is an acceleration that is the base excitation. This is the ground acceleration. Some part of it will be transferred to the structure as well, so the structure will also be vibrating and accelerating. So the larger the acceleration produced in the structure and the larger the mass of the structure, the larger are the inertial forces produced in the structure. So this is just a very fundamental about earthquake loads. Similarly, if you consider wind loads acting on this, so a steady wind load cannot be considered as a dynamic load, but wind gusts you are definitely the dynamic loads. The common thing about these dynamic loads are this earthquake and wind load. The common things about these two loads are that these are horizontal loads, or should I say lateral loads. These are horizontal in nature, whereas these gravity loads, these are vertically downward. So static loads do not cause any appreciable acceleration or vibration of the structure,
whereas dynamic loads do. All right. So what does it mean is this water tank, the support system of this water tank is basically uh, going to take care of two types of loads: vertical gravity loads, which is due to the mass of the, should I say, the weight of the water tank itself, and the weight of the water stored in the water tank. All right, so it has to, these columns have to resist those vertically downward gravity loads due to the weight of the structure and the weight of the water stored in the water tank. And also some dynamic loads, which are the lateral loads, both earthquake and wind loading. So these columns will have to take care of those vertical loads as well as horizontal loads. All right, so we will see some more details about static loads and a quick note about dynamic loads. The analysis due to static loads is easier, simple, and this course will only cover the analysis due to static loads. The analysis due to dynamic loads are simply called dynamic analysis, is much more complicated, and we will not cover this dynamic load analysis in this course. In fact, you will cover some basics of dynamic load analysis in one of your final semester courses, final year courses, structural engineering. So there you will discuss some dynamics of structures, but right in this course we will discuss only the static loads analysis. Now we're going to discuss some static loads, and as I said, we were going to discuss some gravity loads, and gravity loads are, broadly speaking, two types: dead load and live load. So let's see what do we mean when we say dead load, and what do we mean when we say live load. So first, dead load. The word dead actually meaning that this load does not change its magnitude, and it does not change its point of application. A load has two characteristics, or should I say in total three characteristics: magnitude, direction, and point of application. So as far as direction is concerned, for dead load and live load, both are gravity types loads, and both are acting vertically downward. So there's something common about dead and live load. But a dead load does not change its magnitude during the life of the structure, and it does not change its point of application. So that's why you call it dead. Doesn't move, doesn't increase or decrease, stays constant during the life of the structure. So what includes dead load? Self weight of the structure is a dead load. जितना स्ट्रक्चर आज आपने बना लिया उसका वजन पूरी जिंदगी उतना ही रहना है, ठीक है? So its self weight of the structure is a dead load. And what else does it include? It includes weight of any permanently attached component, such as flooring. You see, we have different layers of floor. If this bottom, this prepared concrete, this is RC, let's say RCC slab, and then we have different layers of different materials on the top of this RCC slab in order to make the floor habitable. So we have polythene membrane for insulation purpose, and then we have screed. Screed is usually a mixture of cement, sand, and sometimes some small size coarse aggregate. Maybe maximum size is the
10 millimeter coarse aggregate size maximum if you want to add, if the thickness is large. Otherwise you can have just a mixture of cement and sand. The screed is, you know, this surface that you prepare for your actual floor finish, यानी tiles वगैरह कोई marble वगैरह लगाने से पहले जो आप surface उसके लिए जो आप पहले एक मसाला डालते हैं, तो that is called screed. Floor finish is, you know, that final finish, maybe tiles, maybe marbles, maybe, you know, any other finish. So all these are the floorings. This is the slab structural member, which is इसका weight self weight में include हो गया था, self weight of the structure में, और उसके ऊपर जो permanently attached components हैं, जैसे ये आपको मैं 3 layers दिखा रहा हूँ, these are permanently attached. जब तक ये building रहेगी तब तक what do you expect? Polythene membrane दोबारा कोई नहीं निकाल के वहां से कहीं उसका weight change नहीं हो जाएगा, ना उसका point of application change होगा. इसी तरह जो screeding आपने कर दी है, ये जो floor finish आपने कर दी है, तो वो भी change नहीं होगा. ठीक है? So weight of the flooring is a dead load. All right. Permanent partition walls. Look at this. ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, यानी फ्रेम स्ट्रक्चर से मुराद कि इसके अंदर जो लोड बेयरिंग के लिए हमने सिस्टम बनाया है वो फ्रेम है, यानी वी हैव स्लैब सपोर्टेड बाय beams running in both directions, and then those beams are supported by, this is a column, this is another column, as you can see. So there's another column, and there are more columns but not visible in this picture. So the load from slab is transferred to the beams, and beams are transferring the load ultimately to the columns, and columns are transferring it to the footings, and footings are finally transferring it to the ground. Footings are not visible in this structure, of course, in this picture. ये बनाने के बाद फिर हम ये वॉल्स खड़ी कर रहे हैं. ये जो आपको वॉल नजर आ रही है, ब्रिक वर्क किया, फिर उसको ये आपने देखा हुआ ही है. ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वॉल है, दिस इज नॉट अ लोड बेयरिंग वॉल, इट्स अ नॉन लोड बेयरिंग वॉल, इट इज जस्ट अ पार्टीशन वॉल. ठीक है, पार्टीशनिंग करनी है ना, बड़ा सारा हॉल बन गया, उसमें कॉलम्स लगा दिए बीच में सपोर्ट के लिए. अब उसमें ज़ाहिर है कुछ अगर शॉप्स बनानी है, ऑफिसेस बनाने हैं, तो उसके लिए आपको ज़ाहिर है बीच में पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी. तो ये वॉल जस्ट अ पार्टीशन वॉल है. एंड इफ इट इज यूजुअली दिस वुड बी अ परमानेंट पार्टीशन वॉल. ठीक है, परमानेंट पार्टीशन वॉल. अगर आप मैसनरी वॉल बना रहे हैं और इस तरह से बना रहे हैं जैसे ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज परहैप्स गोइंग टू बी अ परमानेंट पार्टीशन वॉल. सो इफ अ पार्टीशन वॉल इज अ permanent partition wall, then its weight is included in dead load. It's a dead load then, because it's not going to change its magnitude, it's not going to change its position. Okay. Fixed equipment, जो equipment आप move नहीं करेंगे during the life of the structure, you would consider its weight as a dead load. But if you are planning to move the equipment around during the life of the structure, then that same equipment would be considered live load. So depending upon whether you're going to you're planning to move the equipment sometime during the life of the structure, or you're going to let it remain fixed at some place. So if it is fixed equipment, you would call it dead load. Now, how do we calculate dead loads? These are easy to calculate because if we know the densities of the materials, and we often know the densities of the material we are using, or should I say the unit weights of the material. So if you know the densities, you know the dimensions of your structure, so you can calculate the dead loads. And you need to know densities of the materials you're using. So concrete is one very commonly used material you will be encountering. So
what are the densities of concrete? What is the density of concrete? If it is plain concrete, meaning there are no reinforcement steel in concrete, you call it plain concrete, just a mixture of cement, sand, water, and aggregate. Then you call it plain concrete, and its density is 2300 kg per meter cube, and in US customary system you can say 145 PCF, pound per foot cube. And in reinforced concrete, if you have reinforcement added to it, which we often do, then its density is slightly higher because steel is a denser material. So when some part of the concrete is taken by steel, its density slightly increases. 150 pound per foot cube are in the other system. In the mass density is 2400 kg per meter cube, and the unit weight is 150 pound per foot cube. Okay. This is something important to remember. You must memorize this, okay, because you will be using it very often, especially this reinforced concrete density, 150 pound per foot cube. Next is live load. You call it live because it can change its magnitude and point of application. Now, for bridges, live load consists of vehicular traffic consisting of cars, trucks, tanks, and if it is a railway bridge, it would include the weights of trains. Okay, as you can see in this figure, दायरे में से गाड़ियां गुजरेंगी तो गाड़ियों का वजन जो है वो लाइव लोड होगा. अब जाहिर है किसी गाड़ी का वजन कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, यानी कभी गाड़ी लोडेड होगी, कभी अनलोडेड होगी. तो जो गाड़ी गुजरनी है, कोई छोटी गाड़ी हो सकती है, कोई बड़ी गाड़ी हो सकती है. सो it's definitely a live load. It also changes its point of application on the structure. कभी गाड़ी इधर होगी, कभी आगे चली जाएगी, फिर उससे आगे so on. So definitely it's a live load. And for buildings, people and their belongings are the live load. And this is also called occupancy live load. यानी उसको जो ऑक्युपाई कर लेते हैं लोग, यानी उसके अंदर जो रहने लग जाते हैं, उन की वजह से जो उसके ऊपर वेट पड़ेगा, जो वजन पड़ेगा, जो लोड पड़ेगा, that is called occupancy live load. So for buildings, we use the term occupancy live load. So it's the load of the people and their belongings. As you can see in this figure, this is an office where you will see people working. You will see the belongings of the people. The furniture, the files, computers. All right. So different system. So ये जो आपको नजर आ रहा है, this all live load. The weight of this column is the dead load, and everything else that you can see on the floor is live load. कभी ये लोग ऑफिस में होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी एक जगह बैठे होंगे, कभी दूसरी जगह बैठे होंगे. इसी तरह कभी टेबल कहाँ पे वो ले जाए बंदा, कभी कोई कहाँ पे ले जाए. तो it's a live load. Okay. Movable partitions. Movable partitions are also included in live load. Just have a look at these partitioning. ये जो आपको नजर आ रहा है, जो ये आपको नजर आ रहा है, शायद लकड़ी के हैं partitions जो की हुई हैं. ऊपर शायद ग्लास लगाया हुआ है ऊपर. ठीक है. तो अब ये जो partitioning की गई है, हो सकता है ये वाली कंपनी या ये यहाँ से छोड़ जाए और कोई और कंपनी आके इस अरेंजमेंट को चेंज कर रही है. यानी ये वॉल आपको अभी यहाँ नजर आ रही है, हो सकता है कोई और कंपनी आके अपना सेटिंग इस तरह से करे कि वो वॉल को इधर मूव कर दे, या वही कंपनी हो सकता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इन पार्टीशंस को रिलोकेट कर दे. सो दीज आर मूवेबल पार्टीशंस, मे बी मेड ऑफ ग्लास, मे बी मेड ऑफ वुड, मे बी एनी अदर मटेरियल. ठीक है. एल्यूमिनियम के हो सकती हैं. सो
पार्टीशनिंग, ये जो पार्टीशनिंग आपको नजर आ रही है, दीज आर मूवेबल पार्टीशंस। सो अब किसी पार्टीशन को क्या आपको मूवेबल पार्टीशंस चाहिए, यानी पार्टीशन को लोड जो है, पार्टीशन का लोड, क्या आपने उसको डेड लोड कंसिडर करना है या लाइव लोड कंसिडर करना है? ये आपको कौन बताएगा? जो क्लाइंट है उसने आपको बताना है कि मैं जो बिल्डिंग ये बना रहा हूँ, जो ऑनर है बिल्डिंग का, जिसके लिए आप बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, वो बताएगा कि ये जो बिल्डिंग है इसको मैं, इसकी पार्टीशनिंग में डेड मूवेबल पार्टीशनिंग रखूंगा या मैं उसको परमानेंट रखूंगा। यानी क्या वो इस बात को एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो पार्टीशनिंग उसने करनी है वो मूवेबल होगी? अगर यस, तो देन यू विल कंसिडर द लोड ऑफ द पार्टीशंस एज live load. If he plans not to move the partitions during the life of the structure, then you would consider that load of those partitions as we said here. जैसे यहाँ पे आपको मैं दीवार दिखा रहा था, ये वाली दीवार है, these are probably going to remain fixed in their positions, ये जो partition walls हैं, so they will be considered dead load, and these partitions are likely, these partitions are likely to be moved around during the life of the structure, so these will be considered live load. Okay, now loading specifications. मतलब किसी बिल्डिंग के लिए कितना लाइव लोड कितना लेना चाहिए, या उसके ऊपर जो ब्रिज के ऊपर जो ट्रैफिक की लोडिंग है वो कैसी, उसको कैसे कैलकुलेट करना है? देयर आर सेपरेट डॉक्यूमेंट्स ऑन दिस, लोडिंग स्पेसिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स है। जैसे पहला आपको नजर आ रहा है इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड IBC, इट्स करंट वर्जन इज IBC 2021। हर 3 साल के बाद वो इसको अपडेट करते हैं। करंटली दे आर यूजिंग 2021, इससे पहले 2018 का था, फिर उससे पहले सोन पीछे चलते जाए। नेक्स्ट वर्जन विल बी रिलीज इन 2024। So every 3 years they update it, International Building Code IBC, और फिर IBC is actually based on another document, which is this document, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, ASCE. ASCE stands for American Society of Civil Engineers /SEI. अब ASCE का फर्दर एक पार्ट है SEI, Structural Engineering Institute 7-16। ये 7 जो लिखा हुआ है, ये कमेटी, जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस स्पेसिफिकेशन को बनाए, इसको अपडेट करे, उस कमेटी का नंबर है 7, इसलिए इसके साथ 7 लिखा हुआ है, यानी SEI 7 ये उस कमेटी का नंबर है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट कमिटीज इन technical societies which take care of different areas related to that society. So जो कमेटी को ये काम दिया गया है, loads, design loads, minimum design loads for buildings and other structures का, that committee is number 7, SEI 7. So -16 जो आपको नजर आ रहा है, this 16 is 2016, ठीक है, 2016 का वर्जन। इससे पिछला वर्जन था 2010 वाला, ठीक। अभी लेटेस्ट वर्जन इज 2016। इफ आई हैव अ कॉपी ऑफ इट, मेरे पास कॉपी है उसकी, लेकिन वो 2010 वाली कॉपी है, ठीक है। यू कैन सी दिस, ये वो 2010 वाली है, 2016 मेरे पास नहीं है इस वक्त, बट एनीवेज कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है इनमें। मिनिमम डिजाइन लोड्स फॉर बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, एंड दिस इज, यू कैन सी, अब ये बिल वैसे ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है, दिस इज अ लार्ज डॉक्यूमेंट जिसको मेरे पास कुछ पार्ट है, 253 पेजेस है मेरे पास। दिस इज, यू कैन सी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स, ठीक है, जिसमें आपको शक्ल दिखा रहा हूँ इसकी कि ये कैसे लगता है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दीज आर द कमिटी मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर developing this code, developing it, and then, among the committee members there are subcommittees on it which take care of the different types of loads and different, there is a different subcommittee on dead and live loads. There is a different subcommittee for the seismic load. Seismic load means earthquake load. So
specialized people. PE stands for professional engineers. All of them are professional engineers. Most of them are PhDs. So large committee, and these are the contents of this document. You know, combinations of loads, and you will see all information related to this: dead loads, how to calculate dead loads, and then there's a chapter on live loads, how to calculate live loads. So then flood loads and snow loads, there are different rain loads. We are going to discuss something very briefly about this, but just to show you how the document itself looks like. Seismic loads, and let me show you some pages from in between. See how the technical documents are always arranged in this format. You have for example chapter 1, then you have 1.1, 1.2. all right, some definitions. all right, so मेरा पर्पस सिर्फ आपको दिखाना था ये, otherwise this is a long document. Now, occupancy live loads. How to calculate occupancy live loads? What are the guidelines available in the specifications regarding occupancy live loads? Now, this depends on the function or use of the building, of course. जिस पर्पस के लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसका किसने उसको ऑक्युपाई करना है, किस पर्पस के लिए यूज होनी है, what type of building is it, जाहिर है उस हिसाब से लाइव लोड डिफरेंट होगा. We will see in a while. Now, this is often specified as uniformly distributed area load. What does it mean, area load? एक तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन लोड होते हैं ना, जिसको किलोमीटर पर मीटर या पाउंड पर फुट में आप कहते हैं ना, या किप पर फुट में या न्यूटन पर मीटर. एक होता है एरियल लोडिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरियल लोडिंग, जिसको आप पाउंड पर फुट स्क्वायर में, यानी PSF, पाउंड पर स्क्वायर फुट या पाउंड पर फुट स्क्वायर, या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या kgs पर मीटर स्क्वायर में आप स्पेसिफाई करते हैं. So these are often specified as uniformly distributed area loads. Now, this is a table, this is an excerpt, this is just extracted, not the whole table, but just in any a subset of the table given in this document. As we said, ASCE जो अभी अपने document देखा, ठीक है, ये वाला document, इसके अंदर से कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो यहाँ पे दिखाई गई हैं आपको. अगर आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बना रहे हैं और उसके अंदर जो प्राइवेट रूम्स हैं और कॉरिडोर सर्विंग दोस प्राइवेट रूम्स, उनके लिए आप कितना लोड लेंगे? 40 पाउंड पर स्क्वायर फुट यूनिफॉर्म लोड. और पब्लिक रूम्स, अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में जो पब्लिक रूम्स हैं, मे बी रिसेप्शन टाइप रूम्स, जनरल रूम्स जहाँ पे कोई भी जा सकता है, एंड कॉरिडोर सर्विंग देम, उनके लिए आप कितना लोड लेंगे? 100 PSF. ठीक है, और बस यही आप लेंगे. कंसंट्रेटेड लोड नहीं लेना है इसके लिए. ऑफिस बिल्डिंग अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट लोडिंग है. लॉबीज एंड फर्स्ट फ्लोर कॉरिडोर्स 100 PSF, यानी जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना होना है, जैसे लॉबीज़ हैं, ये ज़ाहिर रास्ते होंगे, कॉरिडोर्स होंगे, तो ज़ाहिर उनमें ज़्यादा लोग आप एक्सपेक्ट करेंगे. सो वहाँ पे ज़्यादा लोड है, 100 PSF. ठीक है, और जहाँ पे जो ऑफिसेज हैं उनके लिए, यानी अंदर जो एक ऑफिस है वो, उसके लिए आप लेंगे 50 PSF. जनरली स्पीकिंग, depends upon the type of office, but generally if it is a normal type office, you will consider 50 PSF uniform load. Corridors above first floor, 80 PSF. So first floor corridor और उनके लिए 100 PSF है. Lobbies and first floor corridors above first floor, उनके लिए थोड़ा कम है, 80 PSF.
File and computer rooms shall be designed for heavier loads based on anticipated occupancy. अगर मैं कह रहा हूँ ना कि अगर स्पेशल कोई लोड स्पेशल है ऑफिस, तो फिर उसके लिए जिसमें कोई स्पेशल फाइल्स और कंप्यूटर रूम्स रखने हैं, कंप्यूटर बनाने हैं, तो फिर वो जैसे नेटवर्किंग करनी है तो डिफरेंट अपने सेटअप्स रखने हैं, तो वो फिर समझ लें कि उसको फिर आप अलग से एंटिसिपेट करेंगे, अलग से आप कितना कितना है आप उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जनरल गाइडलाइंस अगर हैं कोई नॉर्मल पर्पस का है ऑफिस, देन दीज आर द गाइडलाइंस। फर्दर स्कूल्स के लिए क्लासरूम्स 40 PSF, तो आप देख रहे होंगे ये जो फिगर है 40 PSF का, 40 या 50 PSF, ये फिगर आपको एक चीज माइंड में रहनी चाहिए कि जो एक क्लोज्ड रूम है, क्लासरूम हो या कोई अपार्टमेंट के अंदर कोई प्राइवेट रूम हो, या ऑफिस के अंदर कोई एक जैसे ऑफिस है इटसेल्फ, नॉट द लॉबीज और कॉरिडोर्स, ऑफिस इटसेल्फ, उसके लिए 40 या 50 इनमें से कोई एक फिगर आपको साथ आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। ऑफिस के लिए थोड़ा ज़्यादा 50 PSF, और क्लासरूम्स के लिए 40 PSF, और प्राइवेट रूम्स उनके लिए भी 40 PSF, ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर फुट। कॉरिडोर्स अबव फर्स्ट फ्लोर 80 PSF, जैसे वहाँ पे था ऑफिस में भी। कॉरिडोर्स अबव फर्स्ट फ्लोर 80 PSF, फर्स्ट फ्लोर कॉरिडोर्स 100 PSF, जैसे यहाँ भी फर्स्ट फ्लोर कॉरिडोर्स 100 PSF था, यहाँ भी 100 PSF। सो सिर्फ फ़र्क क्या हुआ, क्लासरूम के लिए थोड़ा कम है 40 PSF, और ऑफिस के लिए 50 PSF, बाकी तो 80 और 100 ये तो वही रिपीट हो गया। Stairs and exit ways 100 PSF. Naturally you expect lot of people to use stairs and exit ways, and these are also required in emergency exit. अगर emergency में exit करने building को, तो जाहिर है सब लोग किस तरफ दौड़ेंगे, stairs की तरफ दौड़ेंगे ना, exit ways की तरफ दौड़ेंगे, तो 100 PSF उनके लिए ज़्यादा। स्टोरेज वेयर हाउसेस, ठीक है, जैसे गंदम को स्टोर करने के लिए कोई वेयर हाउस है, या मतलब कोई भी वेयर हाउस है जहाँ पे आपने स्टोरेज करनी है, तो लाइट है या हैवी है, अब वो डिपेंड करेगा कितना है, 125 to 250 PSF। स्टोर्स जैसे आपने कैश एंड कैरी स्टोर्स इस तरह से हो गए ना, रिटेल स्टोर्स, तो ग्राउंड फ्लोर 100 PSF, अपर फ्लोर 75 PSF, क्योंकि उनमें रैक्स लगे होंगे ना, तो वो रैक्स, इसका मतलब है वो लोड एक दूसरे के ऊपर उनका पाइल अप हो रहा होगा, तो जाहिर है उसके इस केस में थोड़ा लोड ज़्यादा होगा। ग्राउंड फ्लोर 100 PSF, अपर फ्लोर 75 PSF। होल सेल ऑल फ्लोर्स 125 PSF, ठीक है। होल सेल का अगर हो, यानी वहाँ पे अगर इंडिविजुअल लोगों ने एक एक बंदे ने जाके जैसे घरों के लिए चीज़ें लेनी होती है, वो ना हो, होल सेल हो, तो फिर यानी वहाँ पे होल सेल का काम हो तो फिर 125 PSF, और जो परचून वाला है तो फिर उसके अंदर 100 PSF। ग्राउंड फ्लोर के लिए, अपर फ्लोर्स के लिए 75 PSF। साथ में आपको कुछ कंसनट्रेटेड लोड भी नज़र आ रहा है। नॉर्मली ये गवर्न नहीं करता, अगर आप इस लोड के लिए डिज़ाइन कर दें तो ये इस कंसनट्रेटेड लोड को भी बेयर कर लेता है, लेकिन अगर नहीं करता तो बहरहाल अलग से कोड की रिक्वायरमेंट ये है कि आप ये भी इन इस यानी आपके जो बिल्डिंग, आपके जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है आप बना रहे हैं, वो इस लोड को बेयर कर सकता हो, इस लाइव लोड को, यानी एग्जैक्टली अब मैं उस टेक्निकल वर्ड्स में तो नहीं जा सकता इस वक्त, यानी आप उसके लिए ये लोड कंसिडर करेंगे यूनिफॉर्म, और आपका जो स्ट्रक्चर है इट शुड आल्सो बी एबल टू कैरी दिस मच कंसंट्रेटेड लोड एट, वो नॉर्मली सेंटर के ऊपर आप लगा रहे हो। ओके, सो जो शुरू में मैंने बात की है कि ऑक्यूपेंसी लाइव लोड, इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन और यूज ऑफ द बिल्डिंग। सो दिस इज व्हाट यू सी, किस पर्पस के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, और मेनली पर्पस के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि क्या वो एक पब्लिक जगह होगी यानी या कोई प्राइवेट प्लेस होगी, यानी क्या हर बंदा, अब ऑफिस हैं या प्राइवेट रूम्स हैं, उनमें कोई भी बंदा तो नहीं आके आ जाएगा ना, जिस बंदे का है नॉर्मली वो आएगा, या कुछ और थोड़े बहुत और लोग आ जाएंगे, तो उसको उस केस में 40 से 50 PSF का लोड आप लेंगे, ठीक। रेजिडेंशियल या और क्लासरूम्स के लिए 40, और ऑफिस के लिए थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो स्लाइटली पब्लिक सी चीज़ हो जाती है। ऑफिस
बिल्कुल पब्लिक तो हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन जाहिर है कुछ जिन बंदों का है ऑफिस वो उन लोगों ने यूज़ करना है, या कुछ बाहर से गेस्ट आ सकते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग वो एक यानी हर कोई बिल्कुल पब्लिक सी प्लेस नहीं होगी ना, कोई जाहिर है जिन लोगों के लिए बनाई गई है वो लोगों ने उसमें रहना है, चार दीवारी के अंदर जो होगी चीज़, तो 50 PSF इन दैट केस। और जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे ज़ाहिर है कोई भी बंदा आ सकता है, तो उस केस में 100 PSF। तो 40 और 100 का वर्ड आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये नॉर्मली लोड्स इस तरह से लिए जाता है। पार्टीशन लोड, आई वांट टू से सम मोर अबाउट पार्टीशन लोड। एक्चुअल वैल्यू, अगर आपको अगर आप एक्चुअल वैल्यू यानी एस्टिमेट कर सकते हैं तो फिर तो आप एक्चुअल जो वैल्यू है वो यूज़ करेंगे, लेकिन ऑफन टाइम्स पार्टीशन लोड इज़ स्लाइटली अनप्रडिक्टेबल। लोग बिल्डिंग बना देते हैं, बाद में फिर ज़ाहिर है कुछ कभी पर्पस चेंज भी हो जाता है, न्यू पार्टीशनिंग का प्लान उनका चेंज हो जाता है। सो often we do not we are unable to like calculate this accurately, or should I say predict it accurately. So उस केस में यू विल यूज 20 PSF ऑल ओवर द फ्लोर एरिया। अगर वो जो पार्टीशन है, पार्टीशनिंग है, वो फ्लोर के ऊपर होनी है, जैसे आपको मैं ये दिखा रहा था ये वाली पार्टीशनिंग, अब ये फ्लोर के ऊपर होनी है पार्टीशनिंग, ठीक है। सो इन दैट केस you will use 20, यानी instead of having to calculate the exact weight and position of the partitioning, हम उसके लिए एक 20 PSF यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द फ्लोर एरिया हम उसको कंसिडर कर लेते, ताकि हम उस समझ लो रफड़ में ना पड़े कि अब कितना वजन होगा, कहाँ कहाँ पे वो लग आएगा, उसकी पोजीशन चेंज भी तो हो सकती है। सो इफ़ इट इज़ दैट सिचुएशन यू कैन कंसिडर 20 PSF। आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अलाउ करते हैं, टेक्निकल जो मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा था, कोड आपको अलाउ कर रहा है कि आप 20 PSF ऑल ओवर द फ्लोर एरिया ले लें। कंसिडर इट डेड इफ it is fixed or permanent, जैसे पहले मैंने बात कर ली है, and consider it live if it is movable। ये फर्क हमें क्यों करना पड़ता है कि हमें उसको डेड कंसिडर करना है या लाइव कंसिडर करना है, उसका जवाब आपको जो आगे जो हम लोड कम्बिनेशंस पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा कि एक ही वेट अगर डेड कंसिडर होना है तो उसको हम डिफरेंटली डील करते हैं, अगर लाइव कंसिडर होना है तो उसी लोड को हम थोड़ा डिफरेंटली डील करते हैं। In fact, dead loads are, less likely to change, so we are less worried about it. And live loads are more likely to vary, so we are more worried about it. So for that, so you will get your answer as we see the next slides. Now, if occupancy live load is greater than 80 PSF, then no partition loads are to be considered. Neglect the partition loads, यानी 80 PSF से लार्जर, लेट्स से 100 PSF, जैसे हमने उसको ले लिया, कॉरिडोर्स को ले लिया था, या वैसे भी अगर किसी भी जगह अगर लोड 80 PSF से ज्यादा है, लाइक 100 PSF आपने ले लिया ऑक्यूपेंसी लाइव लोड, तो फिर पार्टीशन का लोड अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गॉट इट? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऑफिस बना रहा हूं और मैंने 50 PSF का लोड लिया है, तो मैं पार्टीशन लोड ऑफ 20 PSF अलग से कंसिडर करूंगा, और प्रोबेबली एक मूवेबल पार्टीशन कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज स्पेशली इन ऑफिसेज दीज आर वी हैव मूवेबल पार्टीशंस। अगर वो बहरहाल डिपेंड कर रहा होगा, आपको पता होगा, आपको जो ऑनर है उसने आपको बताना है कि वो पार्टीशनिंग उसने मूवेबल रखनी है या उनको फिक्स रखना है। लेकिन अगर आप इस कॉरिडोर्स को ये लॉबीज को आप कर रहे थे, 100 का लोड आप ऑलरेडी ले चुके, अब ज़ाहिर है और लॉबीज में तो वैसे कोई पार्टीशनिंग होगी भी नहीं नॉर्मली, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये है स्टोर्स, रिटेल, ग्राउंड फ्लोर 100 PSF, अब आपने 100 PSF का लोड ऑलरेडी ले लिया हुआ है, अब इसके अंदर आप कोई पार्टीशनिंग, चाहे उसमें पार्टीशनिंग होनी भी है, रैक्स वगैरह लगने भी हैं, तो आपने उसको अलग से लोड उसका नहीं लेना, ठीक। 100 PSF आपने ले लिए, बस ये काफ़ी है, अब 100 PSF से और ज़्यादा आप लोड ये नहीं लेंगे। इसी तरह अगर आप होलसेल का स्टोर है
और जितने भी फ्लोर्स हैं उनके लिए आपने 125 पीएसएफ सबके लिए ले लिया। अब इसके अंदर फर्दर कोई पार्टीशन का लोड अलग से कंसिडर आप नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज, अच्छा, ये सारी जो पार्टीशनिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, द अबव पॉइंट्स अप्लाई टू पार्टीशंस इरेक्टेड डायरेक्टली ऑन फ्लोर, जैसे मैं आपको पहले दिखा रहा था, ठीक है। ये फ्लोर के ऊपर जो आपने इरेक्ट करने हैं पार्टीशनिंग, ठीक है, उनके लिए ये डिस्कशन है कि आप 20 पीएसएफ ले लें या एक्चुअल कैलकुलेट कर दें 20 पीएसएफ जो हम कह रहे हैं। लेकिन अगर पार्टीशन जो हैं वो डायरेक्टली ओवर अ बीम आपने इरेक्ट करने हैं, तो वो पार्टीशंस का लोड स्लैब पे नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली फिर उस बीम पे जाएगा जिस बीम के ऊपर आप उसको इरेक्ट कर रहे हैं, उस पार्टीशनिंग को, ठीक है। देन नो पार्टीशन लोड्स आर टू बी अप्लाइड टू द फ्लोर एंड यू नीड टू कंसीडर द पार्टीशन लोड ऑफ द वॉल, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा था पहले डेड के अंदर, जैसे मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, ये जैसे हो गया। अब ये जो पार्टीशन वॉल्स हैं, अगर इसके नीचे डायरेक्टली यहाँ पे एक बीम मौजूद है, जैसे ऊपर भी आपको एक बीम नजर आ रहा है, तो प्रॉबेबली इसके नीचे भी बीम कहाँ पर है, पहले तो स्लैब है, स्लैब के नीचे फिर आपको बीम नजर आएगा, ठीक। जब आप इसके यानी जब आप नीचे लेवल फ्लोर में जाएंगे तो आपको जैसे ये नजर आ रहा है, इस तरह से इस फ्लोर का ये नजर यहाँ पे बीम प्रॉबेबली नजर आएगा, ठीक है। ये कॉलम है, ये एक दूसरा कॉलम है, तो इनको एक यहाँ पे आपको बीम इसके ऊपर रेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो नीचे से जाके आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, यानी स्लैब और फिर ये बीम। अब इस केस में ये जो वॉल का लोड है ये डायरेक्टली उस बीम पे जाएगा जिस बीम के ऊपर इसका आपने इरेक्ट किया हुआ है। अब ये फ्लोर के ऊपर नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि फ्लोर का लोड जाना होता है, यानी स्लैब का लोड जाना होता है अल्टीमेटली बीम्स को, और बीम्स का लोड कॉलम्स पे। अगर आपने बनाया ही उसको डायरेक्टली बीम के ऊपर है तो फिर उसका लोड डायरेक्टली उस बीम को ही ट्रांसफर होगा जिस बीम के ऊपर आपने उसको बनाया हुआ है, ठीक हो गया। स्नो लोड्स, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइव लोड, और ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर ज़ाहिर डिपेंड करता है, रूफ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, एक्सपोजर ऑफ द रूफ टू द विंड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ज़ाहिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, ज़ाहिर हर जगह तो बर्फबारी नहीं होनी होती ना, लाहौर में तो स्नो लोड कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन अगर आप मरी में बना रहे हैं तो फिर ज़ाहिर स्नो लोड आपको कंसिडर करना चाहिए, ठीक। सो इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक फैक्टर्स। रूफ जियोमेट्री, ज़ाहिर है अगर रूफ जो है वो फ्लैट है तो फिर उसके अंदर ज़्यादा वो अक्यूमुलेट होगी स्नो, और अगर इस तरह से जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये जो रूफ है जो कि स्लोप, अगर रूफ स्लोपी हो, इस तरह से स्लोप दिया गया हो, तो फिर उसमें ज़ाहिर है स्नो की एक्यूमुलेशन कम होगी, ठीक है। फिर भी होगी तो सही लेकिन कम होगी, ज़ाहिर है वो स्नो बर्फ जब हो रही होगी तो एक दूसरे के ऊपर आके वो लेयर तो बना देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक हाइट के बाद उसको वो फिर फॉल ऑफ होगा अगर आप स्लोपी बनाएंगे। बहरहाल it depends upon roof geometry, it depends upon climatic factors, and also depends upon exposure of the roof to the wind, ठीक है। इसकी कैलकुलेशंस जो हैं वो उसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा ये डिटेल्ड कैलकुलेशंस हैं, नॉट इजी टू परफॉर्म। सो वैसे इसको भी आप, इसमें असल में दो सिचुएशंस होती हैं, यानी एक सिचुएशन जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि बैलेंस्ड जो यानी यूनिफॉर्म थिकनेस हो, दूसरी सिचुएशन ये भी होती है कि आप ज़रूरी तो नहीं कि वो हर जगह एक ही थिकनेस हो ना, तो कुछ जगहों पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो सकती है, तो अनबैलेंस्ड स्नो लोड भी होता है, तो दोनों केसेस को आपने कंसिडर करना होता है। बहरहाल रूफ लाइव लोड एंड रेन लोड, ये स्नो लोड है ये भी रूफ के ऊपर ही होगा ना, ज़ाहिर बर्फ अगर पड़ेगी तो जो छत है जो सबसे ऊपर आपको आपने बनाई हुई है, जो भी स्लैब आपने रखी हुई है, उसके ऊपर जाके रूफ के ऊपर ही पड़ेगा। रूफ जब का वर्ड जब हम यूज करते हैं इसका मतलब ये है कि हम सबसे टॉप वाला जो आपका वो है
छत है जो सबसे टॉप जो फ्लोर उसको आप कह सकते हैं, फ्लोर तो नहीं उसको कहना चाहिए क्योंकि फ्लोर तो वो होगा जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। रूफ का मतलब है कि अब ये जस्ट ऊपर एक कवर है, हो सकता है उसके ऊपर आपने कोई टेरेस वगैरह बनाया हो, स्पेशली फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, लेकिन आमतौर पे जो रूफ है इट इज़ कमर्शियल बिल्डिंग्स के जो रूफ हैं या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के जो रूफ हैं उनको कोई ऑक्यूपाई नहीं करता, यानी वहाँ पे स्टेयर्स नहीं बनाई होती, वहाँ पे जाके कोई किसी ने खाने छाने नहीं खाने होते हैं आमतौर पे। लेकिन अगर एक्सेस है तो फिर ज़ाहिर है उसको भी आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूफ लाइव लोड को। तो स्नो लोड भी बेसिकली रूफ का रूफ लाइव लोड के तौर पे आप ट्रीट करेंगे, यानी ज़ाहिर है दरमियान में के अंदर जो फ्लोर है, मतलब है कि अगर 10 स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें 5वीं स्टोरी या 6ठी स्टोरी का जो फ्लोर है, इसी तरह के बीच में इंटरमीडिएट जो फ्लोर्स हैं उनके ऊपर तो बर्फ ने नहीं पड़ना ना, टॉप के ऊपर पड़ना है। सो स्नो लोड इज आल्सो बेसिकली रूफ लाइव लोड, ठीक है, रूफ के ऊपर इसने लगना है ना। रूफ लाइव लोड जब हम टर्म यूज करते हैं एल आर, एल विद सबस्क्रिप्ट आर, इससे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इससे मुराद ये है कि जो यानी बंदों का लोड, रूफ पे जाके जो बैठना है आपने, या आपने चेयर्स रखनी है, आपने टेबल वगैरह वगैरह जो चीज़ें रखनी है उनका लोड, ठीक है। यानी जैसे आप बंदे, हम लोग अगर किसी 5वीं फ्लोर पे हम चल सकते हैं, अपनी चीज़ें वहाँ रख सकते हैं, तो अगर हमने रूफ को भी एक्सेस दिया हुआ है कि वहाँ पे लोग बैठ सकें, टेरेस वगैरह को इस तरह का बनाया हुआ है, तो फिर रूफ लाइव लोड भी आपको अलग से कंसिडर करना होगा। यानी वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उसको किस तरह का बनाया हुआ है। मसलन अगर स्लोप आपने बनाया हुआ है, जैसे ये रूफ है, अब इसके ऊपर तो बंदे नहीं बैठ सकते ना। अब ये तो जाहिर है इसको तो आपने पर्सन पीपल को तो एक्सेस नहीं दिया हुआ, इसके ऊपर तो बस बर्फ ही पड़ सकती है, बारिश पड़ सकती है ना। बारिश तो टिकेगी नहीं लेकिन बर्फ पड़ सकती है। तो बहरहाल अगर आपने एक्सेस दिया हुआ है वो लोग वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, तो रूफ लाइव लोड अलग से आप कंसिडर करेंगे। एंड रेन लोड, बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है, अगर वैसे तो आपने वहाँ पे ड्रेनेज दिया होगा उसको, लेकिन ड्रेनेज पत्ते गिरने या मतलब है कि ब्लॉक भी तो हो सकती है ना ड्रेनेज। तो ड्रेनेज अगर ब्लॉक होगी तो फिर पानी तो खड़ा होगा, तो अगर एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है कि पानी खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो लोड आपको स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा, ठीक है। तो रेन लोड इज समथिंग आल्सो दैट यू नीड टू कंसीडर। In addition to snow loads, roofs should be designed for certain minimum live loads. Consideration must also be given to loads due to rainwater or this document, ये A यहाँ पे सॉरी मिसिंग है, ASCE/SEI 7-10 जो भी अभी मैंने आपको दिखाया, requires that roofs be able to support the load of all rainwater that could accumulate on a particular portion of a roof if the primary roof drains are blocked, ठीक है। अगर ड्रेन्स ब्लॉक हो जाए तो फिर उसके बाद जो पानी खड़ा होना है उसको आपने कंसिडर करना है। अच्छा, ये जो 3 लोड्स है ना, स्नो लोड, रेन लोड और रूफ लाइव लोड, इनमें से हमने, जाहिर है अगर ये तीनों साइमल्टेनियसली तो नहीं एग्जिस्ट कर सकते ना, या कर सकते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि बारिश का पानी भी खड़ा है, बर्फबारी भी हुई है, और यानी बर्फ भी जमी हुई है और बारिश का पानी भी खड़ा हो और वहां पे लोग बैठ के खाने भी खा रहे हो, यानी रूफ लाइव लोड जिसको हम कह रहे हैं वो भी। यानी या तो अगर बारिश हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली लोग तो नहीं बैठे होंगे ना फिर वहां पे, जब बारिश जो हो रही होगी ना, रूफ की बात हो रही है, ठीक। दरमियान में तो किसी फ्लोर में आप किसी मतलब के लॉबी में किसी कॉरिडोर में आप बैठ सकते हैं, लेकिन रूफ की बात हो रही है ना, बारिश वहां पड़ेगी, जाहिर है स्नो अगर हो रही है तो वो पड़ेगी वहां पे, बर्फबारी अगर हो रही है तो या तो बारिश होगी या बर्फबारी होगी या फिर वहां पे लोग होंगे, इन तीनों में से कोई एक होगा। अब आप अलग से कैलकुलेट करेंगे, मसलन अगर सिर्फ बारिश हो रही है तो क्या लोड बनता है, अगर खाली बर्फबारी हो रही है तो क्या लोड बनेगा, अगर खाली वहां पे ना बारिश हो रही है ना बर्फबारी हो रही है, लोग बैठे हुए हैं, तो उस केस में जो रूफ लाइव लोड आपका बनेगा LR, वो कितना है। इन तीनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है ना वो हम यूज करते हैं, रेन लोड, रूफ लाइव लोड और
स्नो लोड। अब लाहौर में तो हमें स्नो लोड कंसिडर करने की जरूरत नहीं, मसलन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो रेन लोड आप कंसिडर करेंगे, रूफ लाइव लोड कंसिडर करेंगे, इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आप यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशंस में। और ये जाहिर है सिर्फ उस मेंबर के अंदर ये तीनों लोड्स में से जो हमने बात की, स्नो लोड, रूफ लाइव लोड या रेन लोड, ये तीन लोड्स जो है इनका ताल्लुक ये इनका लोड सिर्फ उन मेंबर्स पे जाएगा जो रूफ को सपोर्ट करेंगे, यानी रूफ वाली जो स्लैब है और रूफ के जो रूफ स्लैब को सपोर्ट करने वाली जो बीम्स हैं, और जाहिर है कॉलम्स ने तो फिर सबको ही सपोर्ट करना है ना। कॉलम्स ऊपर से लोड, कॉलम्स हो गई, फुटिंग्स हो गई, उन्होंने तो सारे स्ट्रक्चर का लोड जो उसके ऊपर बनाया गया उसको कैरी करना है ना। यानी उसमें दरमियान वाले फ्लोर्स भी शामिल होंगे और ऊपर वाले जो रूफ है उसका लोड भी शामिल होगा। लेकिन यानी कॉलम्स और फुटिंग्स तो सबका लोड कैरी करेंगे, लेकिन जो बीम्स हैं या स्लैब्स हैं वो सिर्फ रूफ लाइव लोड, सिर्फ रूफ से रिलेटेड जो लोड्स हैं वो सिर्फ उन पे लगेंगे जो रूफ को सपोर्ट करेंगे। दरमियान में अगर बीम है, दरमियान में कोई स्लैब है, इंटरमीडिएट फ्लोर है, उसकी बीम्स हैं या स्लैब्स हैं, तो वो जाहिर है उनके ऊपर रूफ का लोड नहीं लगेगा, उनके ऊपर अपना फ्लोर का लोड लगेगा। कंस्ट्रक्शन लोड, बिल्डिंग्स हम किस तरह बना रहे होते हैं? अगर मसलन 10 स्टोरी की बिल्डिंग बनानी है तो कैसे बनाएंगे? एक स्टोरी बना लेंगे, तो उसके बाद जब अगली स्टोरी बनाएंगे तो उस अगली स्टोरी का जो फॉर्म वर्क होगा और जो शटरिंग होगी उसके लिए, वो उसको कौन सपोर्ट करेगा? उससे निचले वाली जो स्टोरी अभी बना ली थी फ्रेश, उसके ऊपर लोड जाएगा ना। तो यानी अभी हमने बिल्डिंग इन प्रोग्रेस है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो लोड पड़ना है एक स्लैब के ऊपर, और स्लैब का लोड फिर आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो वो लोड भी हमें कंसिडर करना है। सो therefore you need to consider construction। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अब यानी अगर जब हम कंस्ट्रक्शन लोड को कंसिडर कर रहे होंगे तो उस वक्त जाहिर है फिर ऑक्यूपेंसी लाइव लोड तो नहीं ले रहे होंगे ना। यानी कंस्ट्रक्शन लोड में क्या चीज़ शामिल है? जो फ्रेश कंक्रीट को जो सपोर्ट किया जा रहा है उसका वजन, और जो मटेरियल्स वहाँ पे स्टोर किया जा रहा है उसका वजन, और जो मजदूर या मिस्त्री या जो लोग भी वर्कर्स होंगे वहाँ पे उनका वजन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लोड अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी बिल्डिंग बनी नहीं है। जब बिल्डिंग बनी नहीं होगी इसका मतलब ये कि आप ऑक्यूपेंसी लाइव लोड फिर नहीं कंसिडर कर रहे होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपकी बिल्डिंग के अंदर आपकी अभी अब बिल्डिंग बन रही है और उसमें मीटिंग्स भी चल रही हैं और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन लोड भी होगा। ठीक है, अनलेस के ये नारोवाल कैंपस हो। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन भी हो रही है एंड इट इज ऑल्सो बीइंग ऑक्युपाइड बाय पीपल। ठीक है, बट जनरली स्पीकिंग तो वो भी खैर यही है कि जिस जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है उस जगह तो लोग नहीं होंगे ना। जिस जिस जगह नहीं होगी कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा वहां पे फिर कंस्ट्रक्शन लोड नहीं होगा, सिर्फ बंदों का लोड होगा। ठीक है, ऑक्यूपेंसी लाइफ लोड होगा। ठीक है, ओके, कंस्ट्रक्शन लोड। नेक्स्ट इज विंड एंड अर्थक्वेक लोड्स। ये दोनों को मैंने इकट्ठा इसलिए कर दिया, जो डिफरेंट हैं, लेकिन चूंकि मैंने इनके बारे में डिस्कशन नहीं करने, सिर्फ बस इनको बताना था कि दीज आर आल्सो लोडिंग्स। मैंने पहले इनके बारे में आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल और लेटरल लोड्स। सो दीज आर डायनामिक लोड्स एंड एज आई सेड बिफोर, डायनामिक एनालिसिस इज not so straightforward, so calculations are lengthy and complex. In fact, instead of doing a dynamic analysis, there is an option to carry out a simplified equivalent static analysis for these loads. So there are some empirical ways to calculate these loads, but we're not going to discuss those loads.